हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर बायोमोलिक्यूल, क्लास 11, चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स। तो हम लोगों ने वो पिछले लेक्चर में कर लिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड बायोमैक्रोमोलिक्यूल। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोटीन्स। चलिए चालू करते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स है। पॉलीपेप्टाइड्स चेने हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। दे आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड्स लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये बना देंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। So proteins are basically polypeptides. They are linear chains of amino acids, several amino acids linked by peptide bonds. As shown in figure 9.3. अभी देखते हैं हम लोग फिगर 9.3 को देखते हैं। Each protein is a polymer of amino acid. प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का। As there are 20 different type of amino acids: alanine, glycine, valine, leucine, isoleucine, tryptophan, tyrosine, phenylalanine, proline, arginine, histidine, glutamic acid, aspartic acid, glutamine, asparagine. These are the different amino acids which take part in formation of a polypeptide chain. So there are 20 different type of amino acids. Example: alanine, cysteine, proline, tryptophan, lysine, etc. A protein is a heteropolymer, not a homopolymer. Homopolymer is that in which same type of monomer repeated many times. Identical monomer repetition. ले यहाँ पे प्रोटीन में heteropolymer है क्योंकि different अमीनो एसिड्स linked together with each other by means of peptide bond formation between them. तो ये heteropolymer है, homopolymer नहीं। अगर मानिए कोई प्रोटीन केवल सिस्टीन अमीनो एसिड से बना होता तब हम कहते हैं कि ये होमोपॉलीमर है। जैसे स्टार्च के केस में हम कह सकते हैं कि स्टार्च होमोपॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का। ठीक है, तो स्टार्च को तो होमोपॉलीमर बोल सकते हैं, लेकिन प्रोटीन होमोपॉलीमर नहीं है, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है। A homopolymer has only one type of monomer, same type of monomer repeating a number of times. This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lesson. तो इसमें कौन से हमारे अमीनो एसिड हैं, ये न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बात हो सकती है। इंफॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट एज लेटर इन योर nutrition lessons. You will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet. So out of 20 amino acids, 7 amino acids can't be synthesized by human cell. So these 7 are the essential amino acid and has to be supplemented by the diet. तो वो है हमारे इल वैल्यू MTP। मैंने आपको कहा था याद रखने का तरीका इसका, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, वेलाइन, मिथोनिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानिन, ये होते हैं हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती सेल्स। तो इनको डाइट में होना ज़रूरी है, लाजमी है। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट अमीनो एसिड कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन्स. You will learn that certain amino acids are essential for our health. हमारी हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है ये अमीनो एसिड, essential है because our body cells can't synthesize them and they have to be supplied through our diet. Hence dietary proteins are the source of essential amino acid. इसलिए जो dietary protein है वो source हैं essential amino acids के। Therefore amino acids can be of two category, essential or non-essential. Amino acid can be categorized into two different categories: essential and non-essential. Essential are those which should be present in the diet, whereas non-essential are those that can be made inside that can be synthesized by the body cells itself. The later are those which our body can make while we get essential amino acid through our diet or food. Proteins carry out many functions in living organism. Protein carry out many functions in living organism. Some transport nutrients across cell membrane. Some protein act as a channel protein or tunnel protein or carrier protein present over the
cell membrane and causes the transportation of nutrients across cell membrane. So some protein act as transport nutrient, transporter proteins, carrier protein, channel protein, tunnel protein. Some fight infectious organism. So these are the antibodies. Some fight infectious agents. Some are hormonal in nature. Some are hormones. Some protein act as hormone. Some are enzymes. So collagen, intercellular ground substance. Collagen is the most abundant protein in animal kingdom. Collagen, intercellular ground substance. Trypsin is the example of an enzyme. Insulin act as hormone. Insulin is a hormone secreted by pancreas. Antibodies are glycoprotein, fights against infectious agent. Some proteins act as receptor, sensory reception, and they receive sensory impulses, sensory perception. Sensory reception is smell, taste, hormone, etc. They act as receptor for these sensations. GLUT4 enables glucose transport into cell. Glucose transporter type 4. GLUT4 is the protein which is responsible for the transportation of glucose inside cell. So when hyperglycemia occur, when blood glucose level increases in blood, it stimulates the secretion of insulin from pancreas, and pancreas insulin, when gets secreted, insulin activates this GLUT4. GLUT4 is basically insulin dependent type 4 glucose transporter. So it causes the increased uptake of glucose into the skeletal muscles or liver, and there this increased glucose get converted into glycogen. In this way ग्लूकोज लेवल जो है मेंटेन किया जाता. तो GLUT4 हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है. Some fights infectious agents, some are hormones, some are enzymes. Glucose dependent glucose transporter type 4, insulin dependent glucose transporter type 4, GLUT4. So protein इतने तरह के फंक्शन कर सकता है, इतने तरह के रोल प्ले कर सकता है. कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड. दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ चुका है नीट में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड. कोलेजन is most abundant protein in animal world, whereas ribulose biphosphate carboxylase oxygenase is the most abundant protein in the whole of the biosphere. So in animal world, when we talk about animal world, only animals, then the most abundant protein is collagen. When we talk about entire biosphere, the whole biosphere, then the answer would be rubisco. Okay. नेक्स्ट सेक्शन इज पॉलीसैकेराइड. लेकिन पॉलीसैकेराइड डिस्कस करने से पहले हम लोग प्रोटीन का ही और पढ़ लें. पॉलीसैकेराइड हम लोग एक अलग सेक्शन में पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे आते हैं. तो मैं बाईपास कर दिया है मैंने पॉलीसैकेराइड को. पॉलीसैकेराइड न्यूक्लिक एसिड हम लोग अलग लेक्चर में टेकअप कर लेंगे. पॉलीसैकेराइड के लिए एक अलग आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, और न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन एक अलग वीडियो आपके लिए मिल जाएगी. तो हम लोग प्रोटीन को ही और डेप्थ में पढ़ लेते हैं. प्रोटीन पे आते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर आर हीट्रोपॉलीमर. जैसा कि ऊपर बताया गया, प्रोटीन्स क्या है? हीट्रोपॉलीमर्स हैं कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स. स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. जब हम स्ट्रक्चर की बात करें तब स्ट्रक्चर को कई तरह से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं. इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर्स टू मॉलिकुलर फार्मूला. अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो अगर हम मॉलिकुलर फार्मूला बता रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो बेसिकली हम उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम उसका मॉलिकुलर फार्मूला बता रहे हैं तो एक तरह से उसके स्ट्रक्चर को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलवेज राइट अ 2-डायमेंशनल व्यू ऑफ अ मॉलिक्यूल वाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल. लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तब हम उसका 2-डायमेंशन व्यू की बात करते हैं. एग्जाम्पल बेनिजीन और नेफ्थलीन. फिजिक्स की बात करें, कंजूर अप द 3-डायमेंशनल. अगर किसी
फिज़िक्स वाले की आप बात करेंगे तो फिज़िक्स वाला साइंटिस्ट जो होगा, फिजिस्ट जो होगा, वो 3 डायमेंशन में मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगा, वाइल बायोलॉजिस्ट, और अगर बायोलॉजिस्ट की बात करें, डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफ वी गिव द मॉलिकुलर फार्मूला दैट इज इनफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 डायमेंशन उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देंगे। फिजिक्स में आपको 3 डायमेंशनल व्यू उसका डिस्कस करना पड़ेगा, और 3 डायमेंशनल व्यू को डिस्कस करेंगे हम लोग। और अगर हम लोग बात करें बायोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को 4, तो अगर हम लोग बायोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमको उसको 4 लेवल पे, वाइल बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल पे उसका डिस्कशन करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करना पड़ेगा। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, हमें सीक्वेंस बतानी है अमीनो एसिड की, पोजीशन इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन, विच इज़ द फर्स्ट, विच इज़ द सेकंड। तो अगर आपने बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो अगर आपने केवल अमीनो एसिड की सीक्वेंस बता दी कि फर्स्ट अमीनो एसिड सिस्टीन है, 10th अमीनो एसिड मिथ्योनिन है, 11th अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, 20th अमीनो एसिड लाइसिन है, तो एक तरह से आपने उसकी पोजीशन बता दी, तो ये होगा आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर आप अमीनो एसिड का केवल सीक्वेंस बता दें। द प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, ये जब हम प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं तब हम ये एज्यूम करके करते हैं कि प्रोटीन एक लीनियर अरेंजमेंट में है, एक लाइन है। इमेजिन एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट द लास्ट अमीनो एसिड, जिसमें लेफ्ट एंड फर्स्ट अमीनो एसिड है और राइट एंड आपका लास्ट अमीनो एसिड है, and right end represented by the last amino acid. The first amino acid is always called as N-terminal amino acid. ये first amino acid हमारा N-terminal, beginning N-terminal amino acid, and the last amino acid is called C-terminal closing, जहाँ पे आप आके close कर रहे हैं उसको C-terminal amino acid. So N-terminal amino acid, first amino acid situated at the left side end, and the R-terminal amino acid, C-terminal amino acid, that is the closing amino acid, that is situated over the right hand. A protein thread does not exist throughout as extended rigid rod. लेकिन ये जब आप जानते हैं कि हमने इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है, तो एक चीज़ और है कि हमने ये एज्यूम करके डिस्क्राइब किया है कि ये एक्सटेंडेड रिजिड रॉड है या एक स्ट्रिंग है, जो भी है, एक ये लीनियर फैशन में अरेंज है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, कि ये एक एक्सटेंडेड रिजिड रॉड नहीं है। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, अब ये थ्रेड जो है वो फोल्डेड है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, कुंडली। द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अब ये बात भी है कि ये जो थ्रेड फॉर्म में इसका अरेंजमेंट है, हेलिक्स फॉर्म में अरेंजमेंट है, वो होल ऑफ द मॉलिक्यूल का नहीं है, सम पार्ट ऑफ इट, उसमें से कुछ पार्ट का है। तो ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द अमीनो एसिड, only some portion of the protein thread are arranged in a form of helix. In proteins only right-handed helicals are observed. तो इसमें भी आप देखेंगे प्रोटीन में ओनली राइट हैंडेड हेलिकल्स आर ऑब्जर्व, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल्स नहीं होंगे, ओनली राइट हैंडेड हेलिकल्स आर ऑब्जर्व, ओनली राइट हैंडेड हेलिकल्स आर ऑब्जर्व। अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स इन व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने बात करी कि भाई अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला कोई साइंटिस्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फॉलो कर रहा है, तो अगर आपने उसका केमिकल स्ट्रक्चर बता दिया, दैट इज़ इनफ, मॉलिकुलर फार्मूला बता दिया, दैट इज़ इनफ एज डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला उसको 2 डायमेंशन में बताएगा, फिजिक्स उसको 3D में बताएगा, और बायोलॉजिस्ट को उसको 4 लेवल पर डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने खाली ये बता दिया कि वो एक्सटेंडेड एक तरह से रिजिड रॉड है या एक्सटेंडेड थ्रेड है, एक लीनियर सीक्वेंस में है, कौन सा अमीनो एसिड किस नंबर पे है, अगर आप केवल वो बता रहे हैं तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। लेकिन आप जानते हैं कि अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक रिजिड खाली रॉड नहीं है, एक्सटेंडेड, उसमें हेलिकल्स भी मिल रहे हैं,
कुछ पोर्शन ऐसा है पेप्टाइड चेन का जिसमें राइट हैंडेड हेलिकल्स मिल रहे हैं। जब आप वो बताएंगे, साथ के साथ केवल राइट हैंडेड हेलिकल्स नहीं मिल रहे, ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स एंड इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिकल्स आर ऑब्जर्व, अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म। तो उसमें राइट हैंडेड हेलिकल के अलावा कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न मिल रहे हैं। जब आप उनको भी बताएंगे, ट्विस्ट टर्न दूसरे तरह के भी बताएंगे क्या क्या, और उसमें कॉन्फ़िगरेशनल आपको मिल रहा है। एक एक्सटेंडेड रॉड के अलावा कुछ पोर्शन है जो राइट हैंडेड हेलिकल दिखा रहा, कुछ है जो लेफ्ट हैंड टर्न दिखाएगा, कुछ है जो राइट हैंड टर्न दिखाएगा, ट्विस्ट टर्न, अपसाइड डाउन, अप स्ट्रीम, कुछ इस तरह से। जब बाकी की आप चीज़ें डिस्क्राइब करोगे तब वो हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो राइट हैंडेड हेलिकल्स के अलावा जो उसमें सर्टन ग्रूव्स, अप एंड डाउन, ट्विस्ट एंड टर्न मिल रहे हैं, जब आप उनको डिस्क्राइब करोगे वो हो जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। साथ के साथ ये जो एक लॉन्ग चेन है ये अपने आप पे भी, अपनी एक्सिस पे भी फोल्डिंग दिखा रही है। जब आप उसको भी कंसीडर कर लोगे, द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, जब आप उसको भी डिस्क्राइब कर दोगे, फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल गिविंग राइज टू टर्शरी स्ट्रक्चर, तब आप उसका टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे हो। दिस गिव्स अस अ 3 डायमेंशनल व्यू। टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, टर्शरी स्ट्रक्चर को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है टू फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन की जो एक्टिविटीज़ अभी हम लोगों ने देखी कि एंजाइम की तरह काम कर रहा है, हार्मोन की तरह काम कर रहा है, या रिसेप्टर है या समथिंग लाइक दैट, जो भी। तो ये सारी जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, ज़्यादातर एक्टिविटी टर्शरी स्ट्रक्चर के वजह से हैं। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अभी तक हम लोगों ने बात करी है एक पेप्टाइड चेन के संदर्भ में, लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो उन चेन्स का आपस में क्या रिलेशन है, जब हम उसको भी डिस्क्राइब करेंगे और उसको भी कंसीडर करेंगे। सम प्रोटीन्स आर एन एसेसरी assembly of more than one polypeptide chain or subunit. The manner in which these individual folded polypeptide chains or subunits are arranged with respect to each other. अब ये एक चेन दूसरी चेन के अगर हम देखें उसके रिलेटिव कैसे 66 डिग्री एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे है, अपसाइड है, डाउनवर्ड है, उससे कैसे उसका क्या उससे मतलब उसका अरेंजमेंट है, जब हम उसको भी डिस्क्राइब करेंगे तब हम लोग एक तरह से क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सो व्हेन द मैनर इन विच दिस इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन्स और सब यूनिट्स आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। एग्जाम्पल, लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर्स, कि ये लीनियर स्ट्रिंग बना रहे हैं स्फीयर्स के, या स्फीयर्स अरेंज वन अपॉन अदर, कि एक तरह से स्फीयर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज है इन द फॉर्म ऑफ क्यूब लाइक फैशन, इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। जब हम उसको भी डिस्क्राइब करते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन का रिलेशन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, तो बेसिकली हम लोग उसके क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ, एग्जाम्पल के तौर पे अभी बात करी हम लोगों ने कि प्रोटीन में ज़रूरी नहीं कि एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हीमोग्लोबिन का है, एडल्ट हीमोग्लोबिन कॉन्जुगेट प्रोटीन, जो आपको आरबीसी में मिल रही है और कैरी कर रही है ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है, हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, जिनमें से 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं। तो आपको पता है ह्यूमन जो HB है उसमें आपको 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। हेंस 2 सब यूनिट्स ऑफ अ टाइप अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। ओके जी, चलिए आगे चलें। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर की अब हम लोग बात कर लें। इससे कौन से बॉन्ड है ये बाद में बात करते हैं, पहले अब हम लोग अपनी स्लाइड पे चलें, उधर से थोड़ा आपको और अच्छे से मिल जाएगा मटेरियल। और प्रोटीन्स आर हीट्रोपॉलीमर, ये हम लोगों ने बात कर ली, आपकी NCERT बोल रही हीट्रोपॉलीमर है। स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल मीन्स
different things in different contexts. In organic chemistry, the structure invariably refers to the molecular formula. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हम लोग अगर ये बता देंगे कि भाई उसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या है तो आपने उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर दिया एक तरह से। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे चलें। और अगर आपने ये बता दिया कि पहले नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा, तो आपने उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर दिया। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट की बात करें तो ऑलवेज राइट टू डायमेंशनल व्यू बता देगा वाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। फिजिक्स की बात करें 3 डायमेंशनल व्यू डिस्क्राइब करेगा, वाइल बायोलॉजिस्ट 4 लेवल पर डिस्कस करेगा। तो उसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब, जो हम लोग पढ़ाए उसको और अच्छे से। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की अगर आप सीक्वेंस बता रहे हैं, पोजिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्रोटीन में किस नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड है, पहला कौन सा, आखिरी कौन सा, दूसरा कौन सा, 10वां कौन सा, 100वां कौन सा, तो आप उसका पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। प्रोटीन को हम लोग इमेजिन करते हैं एक सीधी रेखा के रूप में, और इसमें आप अगर उसको एक स्ट्रेट लीनियर फॉर्म में अगर आप उसको इमेजिन करके उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड वाला जो हमारा अमीनो एसिड है वो उसका फर्स्ट अमीनो एसिड, और राइट एंड पे लास्ट अमीनो एसिड, ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल अमीनो एसिड कहलाता है। द प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एन एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। द थ्रेड इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। थ्रेड क्या है? इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स फोल्डेड है, सिमिलर टू अ रिजॉल्विंग स्टेयरकेस, जैसे घुमावदार सीढ़ी होती है उसमें। ऑफकोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन, केवल कुछ पोर्शन है जो इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स अरेंज है। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिकल्स आर ऑब्जर्व्ड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिकल्स आर ऑब्जर्व्ड। अदर रीजन ऑफ पोर्शन आर फोल्डेड अप इनटू अदर फॉर्म्स, व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये जो दूसरे स्ट्रक्चर उसमें राइट हैंडेड हेलिकल के अलावा मिल रहे हैं उनको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इन एडिशन लॉन्ग प्रोटीन चेन इज आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। साथ के साथ ये जो हमारी लॉन्ग चेन है पॉलीपेप्टाइड की, ये आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर भी अपनी एक्सिस पे ये फोल्डेड है, गिविंग राइज टू टर्शरी स्ट्रक्चर। जब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो टर्शरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। दिस गिव्स अस अ 3 डायमेंशनल व्यू। Tertiary structure is absolutely necessary for many biological activity of protein. Chemically protein is made up of, यहाँ से लाइन उठाइए, इंपॉर्टेंट है। Chemically protein is made up of CHON and S। लिखिए अपनी यहाँ पे NCERT लेके बैठा करिए, कई बार बोला तो NCERT खोल लीजिए, NCERT में लिख लीजिए प्रोटीन किसका बना है, अमाइनो एसिड, और उसमें क्या मिल रहा है एलिमेंट्स, CHON S। प्रोटीन में है 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हो सकती है जिसका कि एग्जाम्पल है राइबोन्यूक्लियेज। तो प्रोटीन के एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी जिसका एग्जांपल है राइबोन्यूक्लियस, मायोग्लोबिन। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, एग्जांपल है इंसुलिन। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो मिनिमम मॉलिकुलर वेट ये छोड़ो, इससे नहीं पूछा जाएगा आपको मिनिमम मॉलिकुलर वेट। ये याद रख लो आप कि भाई प्रोटीन जो है उसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है, डबल भी हो सकती, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं और ज़्यादा हो सकती है। तो सिंगल का अगर एग्जांपल आपसे पूछे तो आपका राइबोन्यूक्लियेज और मायोग्लोबिन, 2 का इंसुलिन, 4 का हीमोग्लोबिन। द अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड सीरियली बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अमाइनो ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एडजेसेंट अमीनो एसिड। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड की, रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है होल यूनिवर्स की। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे आइए, पहला, दूसरा, सेकेंडरी, टर्शियरी, सबको हम डिस्कस करें। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर पे आपने ये बताना चालू किया कि किस नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड है। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज़ द पोजीशन इंफॉर्मेशन। केवल आप उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि किस नंबर का अमीनो एसिड है। तो देखिए ये आपका मान लीजिए 100वें नंबर का अमीनो एसिड, और ये आपका मान लीजिए 200 नंबर का अमीनो एसिड, और ये आपका 300 नंबर का अमीनो एसिड। अब ये ट्विस्ट हो गया, अगर यहाँ आ जाए तो मानिए 350 अमीनो एसिड। अब वो पहले वाले के सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा आ गया, 350 वाला, जबकि वो है 350 पे, समझे ना। अगर ये ऐसे ट्विस्ट होके यहाँ आ जाए तो पहले वाले के दूर यहाँ पे 300 है, लेकिन यहाँ पे उसके पास 350 वाला आ गया, 350 वाला आ गया।
तो सीरीज से नंबर से ये नहीं पता लग रहा ना कि उसका क्या रिलेशन है, लेकिन नंबर से ये पता लग रहा है कि पहला अमीनो एसिड ये दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो पोजीशन खाली उसकी सीक्वेंस पता लग रही है, which is the first amino acid, which is the second, and so on. This includes number of polypeptide, number of sequence of amino acid in each polypeptide. तो इसमें आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है ये पता लग रहा, और किस पॉलीपेप्टाइड चेन में किस नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड है ये पता लग रहा। दैट इज डिटर्मिन बाय द डीएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और किस नंबर पर कौन सा अमीनो एसिड है उसको कौन निर्धारित कर रहा, डीएनए। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से प्राइमरी पोजीशन हो रही है, ठीक है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, 2 एंड्स होंगे, बिल्कुल 2 एंड्स होंगे। फर्स्ट आपका एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, 1 एंड 3 एंड 2 एंड। क्या है भाई आंसर, 2 एंड है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है जी। द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, क्या है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड्स है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आइए, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टेरिक रिलेशनशिप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन अ लीनियर सीक्वेंस। तो नए जो रिलेशन बन रहे हैं ड्यू टू ट्विस्ट एंड टर्न बन रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड एंड कोलेजन हेलिक्स। बस इतना याद रख लीजिए, 3 तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड एंड कोलेजन हेलिक्स। बस ये याद रख लो, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या था, उसने बोला जी ये जो अमीनो एसिड ये जो है हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन केवल लीनियर ही नहीं है, उसमें राइट हैंडेड हेलिकल है। राइट हैंडेड हेलिकल पूरे के पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन में नहीं है, कुछ पार्ट में है, उसके अलावा उसमें सर्टेन अदर ट्विस्ट एंड टर्न मिल रहा है। तो जब आप उसको डिस्क्राइब करेंगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड एंड कोलेजन हेलिक्स ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप है, ठीक है। द अल्फा एंड बीटा टर्म्स डेजिग्नेट द फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। छोड़िए ये बात, आगे बढ़िए। अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स ये जो बन रहा है ड्यू टू इंट्रा पॉलीपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, बस इतना याद रख लीजिए। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो बन रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये बनता है ड्यू टू इंट्रा पॉलीपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें इंट्रा पॉलीपेप्टाइड, उसी चेन के अमीनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से सर्टेन ग्रुप्स ट्विस्ट टर्न बन जाते हैं और वो हेलिक्स फॉर्म बन गया, अल्फा हेलिक्स बन गया ड्यू टू इंट्रा पॉलीपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। ऑफ कोर्स ओनली सम प्रोटीन ऑफ द protein thread is in form of alpha helix. In protein only right-handed helicals are observed. The helix is established by hydrogen between oxygen of carboxylic group of one amino acid and nitrogen of the amino acid of the next 4 amino acid. ये बहुत डेप्थ की बात हो गई, इतना आपसे पूछा ना जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए, आप ये याद रख लीजिए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है 3 तरह का है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड एंड कोलेजन हेलिक्स। इतना याद रख लीजिए, वो पूछा जा सकता है आपसे कि टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड एंड कोलेजन हेलिक्स, ये याद रख लो, और ज़्यादा उसमें डेप्थ में ना जाओ, परेशान होंगे आप लोग। चलो आगे। तो ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखा रहा है, केवल ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखा रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर दिखा रहा जब वो अपने पे ही फोल्ड हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात हो गई। और ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जब वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ क्या उसका रिलेशन है, जब हम उसको डिस्क्राइब करेंगे तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। बीटा प्लेटेड में आइए, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन गेट इंटरकनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्फा हेलिक्स बना था इंट्रा पॉलीपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, और बीटा प्लेटेड बनता है इंटर पॉलीपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अ शीट इज प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ फाइबर। तो जब 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इंटर पॉलीपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं तो एक शीट टाइप की बन जाएगी। आई बात समझ में? बिल्कुल महीन बात, छोटी सी पकड़ लीजिए, ज़्यादा गहराई में मत जाइए। अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड और कोलेजन,
ये तीन आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप हैं। अल्फा हेलिक्स बना है ड्यू टू इंट्रा पॉलीपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ऐसे याद रख लो। बीटा बनेगा इंटर पॉलीपेप्टाइडल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ठीक है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड पॉलीपेप्टाइडल। ये अल्फा कैरेटीन और राइबोन्यूक्लियस। बीटा आपसे पूछा जाता, बीटा हमारे प्लेटेड का एग्जाम्पल, आपका आंसर होगा बीटा कैरेटीन एंड राइबोन्यूक्लियस। और अल्फा का एग्जाम्पल क्या था? अल्फा का एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, दिस इज फाउंड इन सेवरल प्रोटीन सच एज केराटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ये रह गया था, यहाँ से उठा लीजिए। अल्फा हेलिक्स के एग्जाम्पल है केराटिन। केराटिन में आपको अल्फा हेलिक्स मिल रहा है, मायोसिन में अल्फा हेलिक्स मिल रहा है, ट्रोपोमायोसिन में। तो ये यहाँ से लिख लीजिए आप, अल्फा हेलिक्स में, केराटिन में अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, मायोसिन में और ट्रोपोमायोसिन। केराटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन आपके अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। और बीटा प्लेटेड का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा बीटा केराटिन, ठीक। कोलेजन में आइए, रामाचंद्रन डिस्कवर्ड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड क्वाइल्ड अराउंड ईच अदर। और इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एक दूसरे के अराउंड क्वाइलिंग कर रही हैं। और ये बना रहा है क्या? In collagen, Ramachandran discovered that there are generally 3 strands of polypeptide, 3 strands of polypeptide के coiled around each other। और इसको हम लोग बोलेंगे हमारा कोलेजन हेलिक्स, ठीक है जी। तो कोलेजन में मिल रहा है ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के अराउंड वूवन है, गूंदी हुई हैं, और उससे कोलेजन हेलिक्स बन रहा है। टर्शरी स्ट्रक्चर पे आइए, देयर इज फोल्डिंग ऑफ वेरियस टाइप्स टू फॉर्म स्फीयर। तो ये जब टर्शरी स्ट्रक्चर हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जब ये अपनी खुद के एक्सिस के अराउंड उसके अराउंड ये लिपट जाती है, या कहिए कि उसके अराउंड ये फोल्डिंग दिखाती है, तो उसको हम लोग टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स क्लोज टू ईच अदर वाइल विच वर अदरवाइज फार अपार्ट। तो ये ऐसे जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और अब ये घूम के वापस वहीं पे जहाँ से ओरिजिन हुआ उसके पास आ जाए, तो वो अमीनो एसिड जो ऐसे डिस्क्राइब करने में कि ये 1st नंबर का, ये 500 नंबर का आपको लग रहा है दूर है, लेकिन ये सर्टन ट्विस्ट टर्न की वजह से पता लग रहा है एक दूसरे के काफ़ी पास आ गए। तो कंफ्यूज ना होइए, छोटी छोटी बातें याद रख लीजिए। टर्शरी स्ट्रक्चर गिव्स द प्रोटीन 3D व्यू। 3D कन्फर्मेशन में जब हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तब ये हो जाएगा टर्शरी स्ट्रक्चर। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जब आप डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, 2-3 पॉलीपेप्टाइड चेन को उनके आपस में क्या रिलेशन है उस हिसाब से डिस्क्राइब कर दोगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन ऑल अमीनो एसिड एंड एब्सेंट इन कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज़ ऐसी है जो अमीनो एसिड में मिल रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं मिल रहा? तो CHO दोनों में होता है, नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट में हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ जी। और हमारा सल्फर पूछ रहा, कार्बोहाइड्रेट में हो सकता है कि नहीं हो सकता। द शेप ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड की शेप को कौन मेंटेन कर रहा है, ये पूछ रहा है। मेंटेन बाय बॉन्डिंग बिटवीन पार्ट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, इम्पॉर्टेंट टू इट्स फंक्शन। द शेप ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन की जो शेप है कैसे मेंटेन हो रही है? बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, हाँ जी हो रही है। इम्पॉर्टेंट टू इट्स फंक्शन, हाँ जी है। अल्टीमेटली डिपेंडेंट अपॉन इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। और फाइनली फाइनल शेप जो है किस पे डिपेंड हो रही है? इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। सभी बातें ठीक है, ऑल ऑफ द अबव कर लीजिए, आगे बढ़िए। ये वाला इसका जवाब नहीं हुआ था, इसका जवाब बताओ बच्चों। इसका जवाब क्या है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपको मिल रहा है किस? हाँ, इसका जवाब मैंने पूछा था, ये बीच बीच में बातों में रह गया कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपको मिल रहा है, सभी अमीनो एसिड्स में मिल रहा है बट कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता। तो सभी अमीनो एसिड ऑल, तो सल्फर सभी में नहीं है। सल्फर आपको पता है सिस्टीन मिथ्योनिन में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी में, नाइट्रोजन इसका आंसर है। नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता।
ठीक है जी। इसका मतलब है सल्फर कार्बोहाइड्रेट में होता है कि नहीं होता, ये भी सोच के बताना मुझे अगली बार। चलिए, मोस्ट मेम्ब्रेन फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय, मेम्ब्रेन के फंक्शन कौन करता है? प्रोटीन करती है। आंसर है प्रोटीन। कैसीन ऑब्टेन इन मिल्क इज अ, कैसीन जो ऑब्टेन हो रहा है मिल्क में वो एक प्रोटीन है। कैसीन इज अ मिल्क प्रोटीन। 82% ऑफ द मिल्क प्रोटीन इज कैसीन एंड रेस्ट 12% इज वे प्रोटीन। ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन लिविंग वर्ल्ड, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन लिविंग वर्ल्ड, रूबिस्को ऑफ प्लांट्स, रूबिस्को ऑफ प्लांट्स आर द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन लिविंग वर्ल्ड एंड कोलेजन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स में कोलेजन है। रूबिस्को है प्लांट्स में और एनिमल्स में कोलेजन है। रूबिस्को ऑफ प्लांट्स एंड कोलेजन ऑफ एनिमल। विच वन इज एब्सेंट इन प्रोटीन? कार्बन होता है, होता है। सल्फर होता है, सिस्टीन मिथ्योनिन है, होता है। नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन भी होता है प्रोटीन में। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, फास्फोरस नहीं होता। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, द अमीनो एसिड्स लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड द अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ अमाइनो ग्रुप जिसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिल ग्रुप जिसमें COH है। आंसर क्या हमारा? फास्फोरस नहीं होता प्रोटीन में। इस पे आइए, देखिए कह रहा है प्रोटीन्स आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है जी। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर। ठीक है जी, बीटा ग्लूकोज का है। इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, इनोलिन पॉलीमर ग्लूकोज का नहीं है, ये हमारा फ्रुक्टोज का है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। रॉन्ग स्टेटमेंट यही है, इनोलिन नहीं है। द मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन अवर बॉडी इज फॉर, मेजर रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। द बॉन्ड इन प्रोटीन दैट आर नॉट ब्रोकन ऑन डीनेचुरेशन आर, वो कौन से बॉन्ड है जब ये प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती तो ब्रेक नहीं होते? ठीक है जी। तो ये हमारे कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड है, इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय डीनेचुरेशन। हमारे कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड है जो डीनेचर्ड नहीं होते जब प्रोटीन डीनेचर्ड होती है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलूँ अब उधर वापस। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर अब आप समझ गए होंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी के 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड और कोलेजन। ठीक है जी। अल्फा हेलिक्स के एग्जांपल क्या थे? केराटिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। बीटा हेलिक्स के, बीटा हमारा केराटिन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर आप समझ गए। टर्शियरी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं कई पॉलीपेप्टाइड चेन का बना, जब उनका आप आपस में रिलेटिव डिस्क्रिप्शन देंगे तो हो जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हो तो मायोग्लोबिन है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से इंसुलिन है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जिस प्रोटीन में है उसका एग्जाम्पल आपका हीमोग्लोबिन है। अब हम लोग आ रहे हैं नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन अ पॉलीमर। इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन और अ प्रोटीन अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड कैसे लिंक्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड से। अमीनो एसिड का अगर आपको ध्यान हो तो COOH ग्रुप, NH2, यहाँ पे H और यहाँ पे R वेरिएबल, R1 कर लीजिए। अब फिर एक यहाँ पे आया दूसरा हमारा COH NH2 और यहाँ पे आपका R2 वेरिएबल और H। ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड और अमाइनो ग्रुप दूसरा अमीनो एसिड का, इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो COOH ऑफ 1 अमीनो एसिड, फिर से बना देता हूँ, वो थोड़ा सा मतलब हो गया था ज़्यादा ही। यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, ये आपका अमाइनो ग्रुप दूसरे वाले का,
HR2 और COOH। तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। OH यहाँ से निकलेगा, H इसमें से निकलेगा, H2O एक मॉलिक्यूल निकल गया। विद द एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दिस टू। अब ये डाइपेप्टाइड हो गया। अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड when carboxylic group of one amino acid reacts with amino group of next amino acid with the elimination of a water molecule, water moiety. The process is called dehydration. ये process है dehydration. In a polypeptide chain, the individual monosaccharide, polysaccharide में the individual monosaccharides are linked by glycosidic bond. तो पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, जबकि पॉलीसैकेराइड में मोनोसैकेराइड जुड़ रहे हैं बाय मीन्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज आल्सो फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन, और ये बॉन्ड भी डिहाइड्रेशन से बनता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। ये बॉन्ड बनता है जब दो एडजेसेंट मोनोसैकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो उनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। इन अ न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट मॉइटी लिंक्स द थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। जब इसी तरह से हमारा बनता है डीएनए का स्ट्रैंड, तो एक न्यूक्लियोटाइड का दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जो असेंबली होती है, जो लिंकेज होता है, वो वाया एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो फॉस्फेट मॉइटी जो एक न्यूक्लियोटाइड की है, न्यूक्लियोटाइड में आपका न्यूक्लियोसाइड, ये हमारा पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ती है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। अब इससे फिफ्थ कार्बन से जब फॉस्फेट मॉइटी अटैच होती है तो ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये फिफ्थ कार्बन वाला न्यूक्लियोटाइड अपने से आगे वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से फिर से एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाता। तो हर न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट अपने वाले न्यूक्लियोटाइड से फिफ्थ कार्बन से जुड़ी है और अपने से आगे वाले न्यूक्लियोटाइड से थर्ड कार्बन से जुड़ी है। यही यहाँ पे बताया गया है। इन अ न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट मॉइटी लिंक्स द थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर of one nucleotide and the fifth carbon of the sugar of succeeding nucleotide and the fifth carbon of the sugar of succeeding nucleotide. The bond between the phosphate and hydroxyl group of sugar is ester bond. A bond between phosphate and hydroxyl group of sugar, is ester. This is the ester bond. Now this is diester bond. As there is one such ester bond on either side, it is called phosphodiester bond. This is ester, so phosphodiester bond. Nucleic acid exhibit a wide variety of secondary structure. Nucleic acid जो है secondary structure दिखाता है. For example, one of the secondary structure exhibited by the DNA is the famous Watson-Crick model. तो ये हमारा डीएनए का बी स्ट्रक्चर जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फंसा लेगा वो यहाँ से आपको कि वॉटसन एंड क्रिक प्रपोज द बी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. दिस मॉडल सेज दैट डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स. वॉटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल सेज डीएनए एग्जिस्ट एज डबल हेलिक्स, दो हेलिक्स है. द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटीपैरेलर, जिसमें दो स्ट्रैंड जो है एंटीपैरेलर हैं, दैट रन इन द अपोजिट डायरेक्शन. बैकबोन इज फॉर्म बाय द शुगर फॉस्फेट. बैकबोन इज फॉर्म बाय शुगर फॉस्फेट चेन. Nitrogenous base are projected more or less perpendicular to this backbone, but faces inside. Nitrogenous bases projecting from this sugar phosphate backbone perpendicular to the backbone, but towards inside, face inside. Adenine and guanine of one strand compulsorily base pairs with the thymine and cytosine. A always comes opposite T. Adenine always makes complementary base pair with thymine, and C, cytosine, always makes base pair with guanine. So A comes opposite T and G always comes opposite C. A and G of one strand compulsorily base pairs with T and C respectively on the other strand. There are two hydrogen bond between A and T
एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन. ईच स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेस. ईच स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेस. Each step of ascent is represented by a base of pair of bases, and each step of ascent, this is a हेलिकल स्टेयरकेस मीन्स ये घुमावदार सीढ़ी है. तो सीढ़ी जब आप घूमते हैं साथ के साथ आप ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी में डंडे हैं. तो ईच स्टेप ऑफ एसेंट, हर कदम जब आप ऊपर बढ़ते हैं या चढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अ बेस पेयर ऑफ बेस. एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट, जैसे जैसे आप सीढ़ी में ऊपर चढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये सीढ़ी घूम भी रही है 360 डिग्री. तो 36 डिग्री. तो 360 डिग्री जहाँ से आप चालू हुए घूम के वहाँ आ जाए. इन सब में आपके कितने बेस पेयर लग जाएंगे? 10. और क्योंकि ये ऊपर भी साथ के साथ आप घूम भी रहे हो, साथ के साथ वो ऊपर भी चढ़ रही है, तो ये जितना डिस्प्लेस हो जाएगी वो उसकी पिच कहलाएगी. वन फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप. तो एक पूरा टर्न घूम के आप 36 डिग्री घूमना, 36 डिग्री. तो जिस पॉइंट से आप चालू हुए 360 डिग्री रोटेट होके वहीं आ जाते हैं. तो 36 डिग्री आप घूम रहे हो, इसका मतलब है एक पूरा टर्न लेने में आपको कितने डंडे लग जाएंगे? 10. एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर पर जब आप जाते हो आप 36 डिग्री रोटेट हो जाते हो. अगर हम ये बोलें ए पॉइंट से स्टार्ट होके आप वापस ए पॉइंट पे आ जाए, तो इसका मतलब है 10 आप डंडे स्टेप्स कवर कर लोगे. लेकिन आप उसी प्लेन पे नहीं घूम रहे, साथ के साथ ये प्लेन ऊपर की तरफ चढ़ रहा. ये आपका जो स्टेयर केस है ये असेंडिंग स्टेयर केस है. वन फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप और 10 बेस पेयर. अटेम्प्ट ड्राइंग अ लाइन डायग्राम, द पिच वुड बी 34 डिग्री एंगस्ट्रॉम. तो पूरा ये जब आप घूम जाते हो उस प्लेन पे आ जाते हो, आप 34 डिग्री डिस्प्लेस हो जाते हो, 34 एंगस्ट्रॉम डिस्प्लेस हो जाते हो. तो 10 बेस पेयर की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है, इसलिए एक बेस पेयर की दूरी एक से दूसरे बेस पेयर की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम. 34 एंगस्ट्रॉम को हम लोग 34 एंगस्ट्रॉम और राइस कितना आप चढ़ गए? 3.4 एंगस्ट्रॉम पर बेस चढ़ गए. The form of DNA with the above mentioned salient feature is called BDNA. इसके ये जो विशेषताएं हम लोगों ने डिस्क्राइब करी डीएनए के स्ट्रक्चर की, ये बी स्ट्रक्चर का डीएनए. इन हायर क्लास यू विल टोल्ड दैट देयर आर मोर डजन ऑफ फॉर्म. तो हायर क्लास में जब हम लोग जाएंगे हम लोग बी स्ट्रक्चर के अलावा और भी दूसरे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. आपके लिए बी स्ट्रक्चर को जानना ही काफ़ी है. तो ये आपका डीएनए के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई. उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए था एडेनिन, ग्वानिन वगैरह, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह पढ़ लेने चाहिए. तो चलिए कोई बात नहीं. तो प्रोटीन बेसिकली हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर किया और प्रोटीन से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगाए. ठीक है जी. अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉलीपेप्टाइड, ये हमारा पॉलीसैकेराइड्स की और न्यूक्लिक एसिड की फिर से एक बार बात करेंगे. तो आपके ये जो अभी के आखिरी में आके कुछ एक पॉइंट आखिरी के 10 मिनट आपको बाउंस हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा, तब वो आपको क्लियर हो जाएगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड के साथ. ठीक है. तब तक इसको देखिए, लाइक करिए, हिट करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए. और आइए ब्रेक के बाद फटाफट मैं आपके इंतज़ार में हूँ.